Hello and welcome. Welcome to the eighth learning session and the last learning session of chapter number 8 of Science 1, which is metallurgy. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered so far. Okay, so can you recall, because it's the last learning session, can you recall at least two physical properties of metals? And can you recall at least two physical properties of non-metals? Can you recall what are the types of reactions metals undergo? And what are the types of reactions that non-metals undergo? What is ionic compound? And can you name at least two properties of any ionic compound? These are the basic principles of metallurgy, right? So what is the meaning of ore? What is the meaning of concentration of ore? How do you extract highly reactive metal? How do you extract moderately reactive metal? How do you extract less reactive metal? What is the meaning of refining of metal? And what is the meaning of corrosion of metal? Can you explain the entire extraction process of aluminium from its ore, which is bauxite? If you are able to answer all of these questions, it means you're on track. If you're not able to answer all of these questions, it means you need to open your textbook, go through the text, you need to go through your notes, or maybe watch a few videos again. So last time we had seen corrosion, right? Corrosion is what? It is decay or destruction of metals. It's a slow process. So it's a slow, gradual decay or destruction of metal. That's corrosion, right? So that was the last topic that we saw in our last learning session. टुडे विल सी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे टाल सकते हैं कोरोजन, ये हम देखने वाले. ओके, सो देयर मेनी टेक्निक्स. So we're going to see galvanizing, we're going to see tinning, anodization, electroplating, and alloying. Okay, all these techniques we'll look at in detail today. Okay, and at the end also we'll see some end of chapter questions which are remaining. The big ones we'll do, the important ones we'll do. The small objective types I'm leaving it to y'all to do it by yourself. Okay. So objective for today will be students will be able to explain ways to prevent corrosion. कैसे कैसे हम corrosion होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके तरीके तुम्हें explain करने आना चाहिए. Okay, because it's a chemistry chapter, I'm going to remind you all to please make sure that you are by hearting this table. It's very important. Okay, so let us begin with can you recall type of questions given on page number 106. There are two questions here. I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and read the questions and try to write the answers by yourself. Then after you play the video again, we'll discuss the correct answers. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video, at least read the question and at least thought about the answer. If not, you haven't written the answer. Okay, so let us discuss the answers. First question, which measures would you suggest to stop corrosion of metallic articles or not to allow the corrosion to start with? Okay, तो तुमको अगर समझो corrosion रोकना है या फिर corrosion होने ही नहीं देना है metallic articles का, metallic objects का, तो तुम क्या क्या कर सकते हो? Okay, so here's the answer. Corrosion of metallic articles can be prevented by isolating. Isolating का मतलब क्या? अकेला कर देना, अलग कर देना. Okay, so अलग करेंगे, isolating them. Them यानी किसकी बात हो रही है? Metallic articles. Metal से जो article बनते हैं, उनको अलग करना है. किससे अलग करना है? From direct contact with air and moisture. वो लोग directly हवा के साथ कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ वो रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा. और मॉइस्चर यानी हवा में जो वाटर वेपर होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करने नहीं देना, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन से जनरली रिएक्शन होकर वो कोरोजन स्टार्ट होता है, राइट. तो उसको अलग करना पड़ेगा किसी तरीके से मेटालिक आर्टिकल्स को एयर और मॉइस्चर से. और ये कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस etc. on metal surface so that the contact of metal surface with air and moisture is preventing. तो इसलिए हम लोग बहुत बार पेंट बार बार करते हैं या फिर ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं. उससे क्या होगा कि जो हमारा मेटल है और जो एयर और मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो अलग रहेगा, हेंस उसका कोरोजन नहीं होगा. दैट्स योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, what is done so to prevent rusting of iron windows and iron doors of your house? तो अगर तुम्हारे घर पे जो लोखंड के खिड़कियां हैं और लोखंड के दरवाजे हैं, उनको रस्ट होने से रोकना है तो क्या कर सकते थे? वेरी इजी आंसर इज पेंटिंग. तुम्हारे जो ग्रिल्स वगैरह जो बनते हैं लोखंड से, उस पे इफ यू सी देयर इज ऑलवेज अ पेंट, ताकि जो एयर में एयर और मॉइस्चर है, सॉरी एयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है वो तुम्हारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर जाएगा. पेंट वाला जो लेयर आएगा वो बीच में आ जाएगा. ओके,
There's another use your brain power type of question given on page number 107, which asks, can we permanently prevent the rusting of an iron article by applying a layer of paint on surface? अगर समझो मैंने एक आयन का ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल खिड़की, लोखंड का खिड़की बना है या फिर लोखंड का खिड़की का ग्रिल बना है, उसको मैंने पेंट कर दिया, तो इसका मतलब अभी कभी वो रस्ट होएगा ही नहीं, ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो, परमानेंटली नहीं कर सकते. ओके, वी कैनॉट प्रिवेंट एन आयन आर्टिकल परमानेंटली फ्रॉम रस्टिंग सिंपली बाय पेंटिंग इट. सिर्फ पेंट करने से हमेशा के लिए वो रस्ट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इवन अ माइनर स्क्रैच ऑन पेंट विल एक्सपोज द आयन सरफेस टू एयर एंड मॉइस्चर. एक हल्का सा स्क्रैच भी आ गया उस पेंट पे, तो उस एरिया के नीचे जो मेटल है वो एक्सपोज हो जाएगा, यानी कांटेक्ट में आ जाएगा एयर और मॉइस्चर के. उससे क्या हो जाएगा? दिस विल लीड टू रस्टिंग ऑफ आयन बिलो द लेयर ऑफ पेंट. तो वहां से रस्टिंग शुरू हो जाएगा, फिर मतलब पूरे के पूरे आयन आर्टिकल पे, आयन ऑब्जेक्ट पे रस्ट फैलना शुरू हो जाएगा. तो एक स्क्रैच भी आ गया तो खत्म खेल. तो इसलिए परमानेंटली हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते पेंट करने से. ओके, सो परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब टेक्निक्स है. ओके, कोरोजन कैन बी prevented by putting a layer of non corrodable metal. ओके, नॉन corrodable metal, ऐसा कोई मेटल तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे डाल दो जो कोरोजन, जिसका कोरोजन होता ही नहीं है. ओके, दिस कैन बी डन इन मेनी वेज. तो अगर समझो एक कोई आर्टिकल है मेटल का, तो उसके ऊपर तुम्हें कोई दूसरा मेटल का लेयर लगाना है जो इजीली कोरोजन, जिसका इजीली कोरोजन नहीं होगा, उसके लिए ये सब टेक्निक्स है. ओके, गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग. विल सी ऑल ऑफ देम इन डिटेल नाउ. सो फर्स्ट वन इज galvanizing. So if you see, galvanizing is a long process, right? But you need not go into much details. Okay, I don't think the board expects you to go in a lot of detail of this process. It's a very long and complex process, but you only need to know the basics of it, and you can just by heart the steps involved. Okay, that's all that's needed. So in this method, a thin layer of zinc is applied to prevent corrosion of iron or steel. For example, shining iron nails, pins, etc. So जो आयन के पिन्स होते हैं, यू पिन हो जाएगा, या फिर ऐसा बोर्ड पे लगाने वाला पिन हो जाएगा, या फिर कोई भी तुम्हारा नेल कटर वगैरह भी होगा जिसमें आयन यूज हुआ है, वो हमेशा इतना शाइनी क्यों लगता है और वो इजीली रस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर हम एक हल्का सा पतला सा लेयर जिंक लगा देते हैं. ओके, और जिंक इजीली कोरोड नहीं होगा. सो लेट अस लुक एट द स्टेप्स आल्सो. सो फर्स्ट इज कॉस्टिक क्लीनिंग. कॉस्टिक एसिड याद है? कॉस्टिक एसिड इज NaOH, राइट? सो कोई भी बेसिक या फिर एल्कलाइन सोल्यूशन ले लो गरम, और उसमें तुम उसको क्लीन कर लोगे पहले उस ऑब्जेक्ट को. फिर रिंसिंग यानी साफ करना. इस टैंक में बेसिकली पानी होगा, पानी से साफ कर देंगे. फिर पिकलिंग से क्या होता है? उसके अंदर जो कुछ भी आयन ऑक्साइड्स होंगे उसको निकालता है पिकलिंग. ओके, वापस रिंजिंग मतलब वापस साफ करना. ये पानी वाला टैंक है. फिर फ्लक्स सोल्यूशन में क्या होता है? जिंक अमोनिया, ये केमिकल होता है. अगर वो केमिकल लग गया ना इस ऑब्जेक्ट पे, तो उसके ऊपर जिंक अच्छे से चिपक जाएगा, वरना उसके ऊपर जिंक अच्छे से चिपकता नहीं है. तो पहले फ्लक्स सोल्यूशन में हम जिंक अमोनिया में उसको मिक्स कर देंगे ताकि वो जिंक अमोनिया से पूरा गीला हो जाएगा. फिर अभी उसको ड्राई होने रख देंगे. ड्राई होने के बाद जिंक बात दे देंगे. ओके, और जिंक बात देने के बाद उसको ठंडा कर देंगे, और फिर हमने चेक करेंगे हर जगह पे अच्छे से जिंक लग गया कि नहीं. So these are all the steps in galvanizing. Okay, in this method corrosion of zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. Okay, electropositive यानी उसको इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद को पॉजिटिव बनाना है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो आयन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर ले, तो आयन से पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा? जिंक एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी वो ज्यादा रिएक्टिव है. तो पहले जिंक रिएक्ट करेगा और फिर बाद में आयन रिएक्ट करेगा. तो जब तक जिंक रिएक्ट कर रहा है तब तक तुम लोग का आयन का जो ऑब्जेक्ट है वो सेफ रहेगा, राइट? हेंस तुम्हारा जो आयन का ऑब्जेक्ट है उसका लाइफ इंक्रीज हो रहा है, वो ज्यादा टाइम के लिए चलेगा तुम्हारा. After a few rainy seasons, the zinc layer goes away and the inner iron gets exposed. Then iron starts rusting. तो बेसिकली 2-3 साल के बाद, 4-5 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द जिंक लेयर, कुछ सालों के बाद वो जिंक का जो लेयर है वो चला जाता है, और जिंक का लेयर चले जाने के बाद फिर उसके नीचे का जो आयन है वो रस्ट होना शुरू हो जाता है. सो दैट्स योर फर्स्ट टेक्निक विच इज गैल्वेनाइजिंग. क्या है गैल्वेनाइजिंग? पुटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक on your iron or steel object. That's your first method, galvanizing. Next, tinning. टिनिंग में कौन सा एलिमेंट यूज होने वाले उस नाम में ही लिखा है टिन, राइट? टिन. सो टिन ये यूज करने वाले. सो इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल्स.
एंड वी कॉल दिस एज काल्ही, ओके, और कल्ही भी बोलते हैं. आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन एंड आई हैव नॉट रियली इवन सीन दिस, बट देयर आर अ फ्यू हाउस होल्ड्स जो अपने घर पे जितने भी बर्तन वगैरह होंगे उन बर्तन का हमेशा टिनिंग करते रहेंगे बार बार. वो टिनिंग करने से क्या होगा, एक हल्का सा लेयर टिन का उसके ऊपर आ जाएगा, जिसको हम कलाई भी बोलते हैं. और उससे तुम्हारा जो वेसल है, जो तुम्हारा बर्तन है, वो तुम्हारे सेफ रहेंगे. ओके, अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर और ब्रास वेसल. अगर तुम्हारे पास कॉपर या ब्रास का कोई भी बर्तन होगा, वेसल यानी बर्तन, तो उस पर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है. और जो ग्रीन कलर का लेयर है वो पॉइजनस होता है. ओके, तुमने अगर कंज्यूम कर लिया, खा लिया, पी लिया, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. So say for example, if buttermilk, what is buttermilk? Buttermilk यानी छाछ. Okay, so if buttermilk or curry is placed in such a vessel जिसपे greenish layer आ गया है, वो खराब हो जाएगा. Hence tinning is done to prevent all such damages. तो अगर tin का एक लेयर लग गया तुम्हारे बर्तन पे, तो greenish layer नहीं आएगा. Okay, so that's tinning. Let's move ahead with anodization. Okay, so what is anodization? Anodization ही कौन से वर्ड से बना होगा? एनोड से. एनोड किसमें हमने पढ़ा था? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस में देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स. एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, बराबर? एनोडाइजेशन इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस. तो नाम में तुम्हें हिंट मिल जाता है कि उसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है. So in this method, metals like copper, aluminium are coated with a thin and strong layer of their oxides by means of electrolysis. तो electrolysis से क्या कर देंगे? कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड डाल देंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल देंगे. ओके, तो उसका एक लेयर डाल देंगे. तो अगर समझो एल्यूमिनियम का एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ऊपर वाला लेयर ऑलरेडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, तो जो नीचे वाला लेयर है उसके साथ और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बराबर? इसलिए अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो सेफ रहेगा. दैट्स द लॉजिक. ऊपर का लेयर अगर ऑक्साइड फॉर्म कर दिया, तो नीचे का लेयर नहीं सेफ हो जाएगा, राइट? क्योंकि फिर बाद में एयर और अंदर घुस नहीं पाएगा. तो ये कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से. फॉर दिस द कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज एनोड, इसलिए इसका नाम है एनोडाइजेशन. ओके, सो लेट अस सी द डायग्राम. सो हियर इज अ डायग्राम. यहाँ पे तुम्हारा टैंक है, यहाँ पे पावर सोर्स है. पावर सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल जहां पे लगा है, टैंक को ही लगा है, बराबर? ये जो तुम्हारा टैंक है वही तुम्हारा कैथोड है. ओके, एंड एनोड तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल को होगा. ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड है, और एनोड को अलग अलग ऑब्जेक्ट से टच कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे एनोड इस ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, यहाँ पे एनोड इस ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव. उसका उल्टा क्या होता है? कैटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनायन इज ऑलवेज नेगेटिव. यहाँ पे उल्टा होता है एनोड और कैथोड के केस में. सो फॉर दिस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज एनोड. एनोड में जिसका भी तुम्हें एनोडाइजेशन करना है लगा दोगे. ओके, एज द as this layer of sorry as this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of corrosion of the metal. ये यूनिफॉर्म होता है. ओके, ऐसा नहीं कि हर जगह किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा ऑक्साइड फॉर्म हो गया, किसी एक जगह पे बहुत कम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता. हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, इसलिए वो सेफ हो जाता है. ओके, पूरे सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर आ जाता है. For example, when aluminium is anodized, a thin layer of aluminium oxide is formed. It obstructs the contact of aluminium with oxygen and water. ऊपर का लेयर aluminium oxide हो गया, तो अंदर का लेयर, अंदर का जो aluminium है, वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा. दिस प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन. तो एक बार ऊपर का लेयर ऑक्सीडाइज हो गया अच्छे से और यूनिफॉर्मली, हर जगह पे इक्वल ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ओके, तो पूरा का पूरा ऊपर का सरफेस एक बार ऑक्सीडाइज हो गया, तो नीचे का लेयर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अंदर का जो पार्ट है वो सेफ रहेगा. This protection can be further increased by making the oxide layer thicker during anodization. तो कितना थिक बनाना है तुम्हारा ऑक्साइड का लेयर, ये भी तुम कंट्रोल कर सकते हो एनोडाइजिंग में. ओके, तुम करंट से कंट्रोल कर सकते हो, टाइम से कंट्रोल कर सकते हो, मेनी वेरिएबल्स. तो उसको भी तुम कंट्रोल करके तुम्हारा लेयर थिक बना सकते हो. लेयर थिक बनाने तो और ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा. ओके, सो दैट्स योर एनोडाइजेशन. तो अब तक हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है एनोडाइजेशन, इसके पहले हमने देखा था टिनिंग, और उसके पहले हमने देखा था गैल्वेनाइजिंग. ओके, सो 3 हो गए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी देखो, प्लेट ये वर्ड आ गया. प्लेट यानी एक लेयर बनाने वाले, किसी का तो लेयर बनाने वाले. इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग प्लेटिंग करने वाले. ओके, तो तुमने सुना होगा गोल्ड प्लेटिंग वाला पेन है. ये एक पेन है जिसका ऊपर का लेयर गोल्ड से बना है, या फिर गोल्ड प्लेटेड का ऑर्नामेंट है, यानी वो जो
ऑर्नामेंट है, वो जो जेवर है, वो बना है स्टील से या फिर आयरन से, लोखंड से बना है या फिर कॉपर से बना है, ओके, जो महंगा नहीं है, तो उससे बना, बट उसका ऊपर का जो लेयर है वो गोल्ड से है, तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा गोल्ड से ही बना है, राइट। तो वैसा भी होता है, जो गोल्ड प्लेटिंग होता है, सिल्वर प्लेटिंग होता है, प्लैटिनम प्लेटिंग होता है, वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से। So in this method, a less reactive metal is coated on a reactive metal by electrolysis. तो अगर एक ऐसा मेटल ले लो जो काफी इजीली कोरोजन जिसका हो जाता है, उसके ऊपर तुम ऐसा मेटल का लेयर लगाओ दे जो जिससे इजीली कोरोजन नहीं होगा, जो कम रिएक्टिव है, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ओके। तो सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गोल्ड का बहुत यूज करते हैं, ओके, क्योंकि गोल्ड चमकता है, राइट, एंड गोल्ड इजीली रिएक्ट भी नहीं करता है। गोल्ड इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत रेयरली वो रिएक्ट करेगा, तो इसलिए गोल्ड प्लेटिंग लगाना अच्छा होता है, राइट। तो ज्यादा समय के लिए चलेगा, खराब नहीं होगा उसके नीचे जो कुछ भी है। एंड कुछ लोग को थोड़ा ऐसा शो ऑफ भी करना होता है, राइट। अगर शो ऑफ करना है, पैसे नहीं है, तो वो लोग ब्रेसलेट ले लेंगे, अंगूठी ले लेंगे, ऐसा चेन ले लेंगे, जो बना है एक्चुअल में लोखंड से, कॉपर से वगैरह, बट उसके ऊपर जो लेयर लगा हो गोल्ड से लगा है, तो ऐसा लगता है कि अच्छा इसके बस कितना सारा गोल्ड है, बराबर। So that's also one of the reasons people use it. So you can see here, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे क्या है, एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। तो जो एनोड होगा उस पे ये तुम्हारा सिल्वर प्लेट है, ओके, यहाँ से सिल्वर निकलने वाला है। और जिसको भी प्लेटिंग करवाना है, फॉर एग्जाम्पल एक चम्मच है, चम्मच को अगर तुम्हें प्लेटिंग करवाना है सिल्वर से, तो यहाँ से सिल्वर निकल के यहाँ पे चला जाएगा और इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, ओके। So that's your electroplating. Next is alloying. Okay, this is our last uh, technique to prevent corrosion. Okay, so majority of the metallic substances used presently are in the form of alloys. ज्यादा से ज्यादा जितना भी मेटल तुम यूज करते हो तुम्हारे डेली लाइफ में, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ एलॉयज। अकेला कोई मेटल नहीं होता, ओके। तो एलॉय क्या होता है? The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metals or non-metals in a certain proportion is called as alloy. Okay, homogeneous mixture मतलब क्या? मिक्सचर मतलब समझ गया, राइट। तुम लोग भेल बनाते समय अलग अलग चीजें मिक्स करते हो, बराबर। तो वैसे मिक्सचर का मतलब क्या? अलग अलग चीजें मिक्स करना। होमोजेनियस का मतलब क्या है? एकदम अच्छे से मिक्स हो जाना, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी का एक ग्लास ले लो और उसमें थोड़े से पत्थर डाल दूं, अच्छे से मिक्स होने वाला है क्या? नो। तो होमोजीनियस नहीं होगा, होमोजीनियस का उल्टा क्या है? हेट्रोजीनियस, ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि सारे के सारे पत्थर नीचे होंगे, पानी ऊपर होगा, तो मिक्स तो कर दिया बट अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स किया, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। पहले अगर तुम नमक डालोगे, नमक डाल के उसको मिक्स कर दोगे, तो नमक पूरा गायब हो जाएगा पानी में, जो एकदम अच्छे से मिक्स हो गया उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ओके। सो एलॉय भी ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। क्या मिक्स होता है? एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिक्स हो जाएगा, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का भी एलॉय बना सकते हैं, ओके। और उसका एक प्रोपोर्शन होता है, ऐसा नहीं कि एक चम्मच जिसका डाल दो, दो चम्मच उसके डाल दो, इतना इनएक्यूरेट नहीं था, एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि इसका 10%, उसका 20% वगैरह वगैरह, ओके। सो दैट इज एलॉयज। तुम लोग मेजोरिटी जो कुछ भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो, सारे के सारे जनरली मेटल से ही बने होते हैं, ओके। सो कोई एक मेटल से तुम्हारे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बने होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? अलग अलग मेटल्स या फिर मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके अलग अलग एलॉयज क्यों बनाते हैं हम लोग? द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। कितना ज्यादा कोरोजन हो रहा है ये कम करना होगा, तो हम लोग एलॉयज यूज करेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, तुमने whenever you have a sports competition, right, so first prize is gold, second prize is silver, third prize is bronze। तो ये ब्रॉन्ज वो वाला ब्रॉन्ज है, ओके। ये ऐसे ब्राउन कलर का दिखता है ब्रॉन्ज। सो ब्रॉन्ज इज एन alloy formed from 90% कॉपर एंड 10% टिन, ओके। तो उससे हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज स्टैचू डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन। तो अगर तुम्हें कोई स्टैचू बनाना है, कोई मूर्ति वगैरह बनानी है, तो उसको तुम ब्रॉन्ज से बनाओगे, तो उसको अगर तुम सन में रखोगे, बारिश में रखोगे, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Stainless steel does not get stains with air or water and does not rust. ओके, तो स्टेनलेस स्टील पे, स्टेन मतलब क्या? दाग। तो दाग, बिना दाग वाला स्टील। सो अगर तुम स्टेनलेस स्टील यूज करोगे तो उस पे हवा की वजह से, वाटर की वजह से, पानी की वजह से दाग नहीं लगेंगे, और वो रश नहीं होगा। रश नहीं होना, दैट्स मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट। उस पे जंग ही नहीं लगेगा। तो जंग नहीं लगना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट बहुत लंबे समय के लिए यूज करना है। तो वो कैसे बनाते हैं? इट इज एन अलॉय फ्रॉम 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% कार्बन। इसको, इन तीनों को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनता है, ओके। और ये परफेक्ट इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ओके। कुछ भी
1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच नहीं चलेगा। ओके, एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। In recent times, various types of alloys are used for minting coins. तो coins भी हमारे mostly आजकल alloys से बनते हैं। You can take this up as a assignment, okay? कि हमारे इंडियन रुपी कॉइन्स जो है वो कौन से एलॉय से बनते हैं, कैन यू फिगर दैट आउट। और वो जो एलॉय बनता है उसमें कौन से एलिमेंट्स कितने कितने परसेंट होते हैं। If you can find that and put that in the chat box, or not chat box, but in the comment section of this video, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ओके, इंडियन रुपीज के जो भी कॉइन्स है उसमें कौन से एलॉयज यूज करते हैं और वो एलॉयज में अलग अलग एलिमेंट्स का कितना प्रोपोर्शन होता है। दैट्स योर असाइनमेंट फॉर दिस वीडियो, टू फाइंड दैट आउट ऑन द इंटरनेट and put it in the comments of this video. Okay, let's move. So we are also done with alloying. So हमारे सारे 5 techniques हो चुके हैं। Okay, now we'll move on to the remaining end of chapter question. So this end of chapter question is given on page number 109. Write chemical equation for following events. We have covered all the chemical equations now. Okay, और हमने chapter 3 भी खत्म कर लिया, chemical equations, chemical reactions and equations. तो उसमें से भी तुम concepts उठा के इन questions का आंसर कर सकते हो। So what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and write the reactions by yourself. खुद से लिखने आ जाना चाहिए। This is our last learning session. This is our last chapter for the entire science one. तो अब तक तो आ ही जाना चाहिए। So I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video, read all the questions, write the correct chemical equations for each and every case that they have given. Okay, so I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. Now let us discuss the correct answers. So the first question was, aluminium came in contact with water. अभी water नहीं, air. So aluminium जब भी air के contact में आएगा, हवा में कौन सा element present है? It's oxygen. So aluminium will combine with oxygen, will give you aluminium oxide. As simple as that. काफी सिंपल था, राइट? एल्यूमिनियम अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर देगा। सो एल्यूमिनियम जो सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन जो हमेशा O2 फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू Al2O3। अब ये Al2 और O3 क्यों आया? Al का रेडिकल क्या है? +3। सो ये यहाँ पे 3 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऑक्सीजन का रेडिकल क्या है? 2 माइनस, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे Al2 आ गया। तो इसलिए वो जो फर्स्ट टेबल था ऑरेंज कलर का जिसमें रेडिकल्स वगैरह दिए थे वो बाय हार्ट होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द करेक्ट molecular formula. Okay, let's move ahead to the second one. Iron filings are dropped in aqueous solution of copper sulfate. Okay, so iron filings any Fe, copper sulfate is CuSO4, right? So Fe plus CuSO4 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? Fe के साथ SO4 आ जाएगा, Cu अकेला हो जाएगा। This is your displacement reaction, right? चैप्टर 3 में बहुत सारे देखे displacement reaction. So क्या हो जाएगा? SO4 सल्फेट जो है वो निकल के Fe के साथ आ जाएगा, तो FeSO4 आ जाएगा, ferrous sulfate, and copper अकेला हो जाएगा। So that's your equation for the second question. Third, a reaction was brought about between ferric oxide and aluminium. Brought about लिखा है, brought about यानी जबरदस्ती करवाया। जबरदस्ती कैसे करवाते हैं? जला के, इग्नाइट करके, हीट देके, एनर्जी देके। सो इन दोनों को जलाना पड़ेगा। तो फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को जलाओ, इग्नाइटेड यानी जला रहा है। ओके, तो यहाँ पे है फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम। अगेन देखो ये Fe2O3 क्यों है? फेरिक यानी +3, फेरस यानी 2+ होता है, फेरिक यानी 3+ होता है। सो यू नीड टू नो फेरस 2+ होता है, फेरिक 3+ होता है। दोनों Fe है बट दोनों के अलग अलग रेडिकल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट। ओके, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल। एंड ऑक्सीजन क्या है? 2-, तो यहाँ पे 2 आ गया। फेरिक यानी 3+, तो यहाँ पे 3 आ गया। सो फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम इग्नाइटेड, सेम रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है निकल के एल्यूमिनियम के साथ आने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीजन निकल के एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा, Fe अकेला हो जाएगा। तो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ आएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, एंड Fe अकेले रहेगा तो आयन बन जाएगा, राइट? एंड हीट निकलेगा इस रिएक्शन में से। So that's your answer to the third question. Let's move on to the fourth one. Electrolysis of alumina is done. इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो तुम, और वो 2 जगह पे होता है, कैथोड पे भी होता है, एनोड पे भी होता है। तुम्हें दोनों कैथोड प्लस एनोड दोनों का रिएक्शन लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाला। सो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन 2- क्या कर देगा? ये इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। बट ये 2 ऑक्सीजन 2- लिए तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो 2O2- के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो चारों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये O2 बन जाएगा, विच इज ऑक्सीजन गैस। दिस इज ऑक्सीडेशन एट एनोड
एंड कैथोड में Al3+ है, 3+ यानी इसको 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए खुद को न्यूट्रल बनाने के लिए। तो Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, सो +3 -3 कट होके सिर्फ एल्यूमिनियम मिलेगा। यहाँ पे लिक्विड लिखा है कि मोल्टन स्टेट में होता है। ओके, इफ यू नीड यू कैन जस्ट रिवाइज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पार्ट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो ये मोल्टन एल्यूमिनियम मिल जाता है कैथोड पे, और ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। सो व्हेनेवर दे आस्क अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, बोथ एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन, यू शुड बी एबल टू राइट। ओके, लास्ट वन, जिंक ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जिंक ऑक्साइड ले लो ZnO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो HCl। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। यहाँ का जो ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में आते तो क्या बनता है, वाटर। सो यहाँ पे वाटर बन गया। सो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चला गया, हाइड्रोजन के पास पहले से क्या था, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन जिंक के पास चला जाएगा। सो क्लोरीन प्लस जिंक क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के पास चले जाता है और क्लोरीन भी जिंक के पास चला जाता है। यू गेट जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। सो दैट्स योर आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग गिवन ऑप्शंस। तो ये तुम्हारा सेंटेंस स्टार्टेड है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या है, तुम्हें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पूरा एक्सप्लेन करना है। ओके, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है तुम यूज कर भी सकते हो, नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट एंड में क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पूरा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए अच्छे से। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मार्क्स इट हैज बीन आस्क्ड फॉर, यू कैन चूज कि कितना पॉइंट्स लिखना चाहिए, कितना बड़ा लिखना चाहिए, कितना छोटा लिखना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। ओके, सो हियर इज माय आंसर। I've put अलग अलग color for अलग अलग points. Okay, so the first point is black color, second point is red color, third point is orange color, fourth point is blue color. Okay, so again as I said, it's not important to stick to all these points. Just make sure कि तुम extraction of oil aluminium को पूरी तरीके से अच्छे से explain कर रहे हो। Okay, and depending on marks you can write कितना marks के लिए expected है। So ये I think can be asked for 3 marks। 3 marks के लिए पूछा तो इतना लिखना पड़ेगा। 2 marks के लिए पूछा तो 1-2 points कम कर सकते हो। I'm not going to read this out. We have already seen extraction of aluminium in detail in our previous learning session, so I'm not going to read this out. But ऐसा expected है। Okay, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, complete the following statement using given options। स्टेटमेंट का ये जो सेंटेंस स्टार्टेड है, उस पैराग्राफ का जो स्टार्टर है उसको यूज करके पूरा एक्सप्लेन कर देना वो पार्ट। ओके, so that's your 10th question of end of chapter also completed. Last one, that okay, this is not the last one, this is the second last. So second last question, divide the metals copper, zinc, calcium, magnesium, iron, sodium, lithium into 3 groups, namely reactive metals, moderately reactive metals and less reactive metals. तो जितने भी मेटल्स दिए, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसका एक ग्रुप बना दो, कौन मीडियम रिएक्टिव है उसका एक दूसरा ग्रुप बना दो, कौन सबसे कम रिएक्टिव है उसका एक तीसरा ग्रुप बना दो। ओके, वैसा पूछा है। So again, we have seen the reactivity series, right? Using the reactivity series, you have to make 3 buckets. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to do that by yourself. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope at least you opened your textbook and went through the reactivity series and tried to answer. So here is the reactivity series, right? ऊपर के सबसे highly reactive है, नीचे के सबसे कम reactive है। तो पहले रिएक्टिव मेटल्स में कौन से आएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम। देखो कैल्शियम यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, लिथियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे ऊपर वाले हाई रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। नेक्स्ट मीडियम रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जिंक और आयन बोला है। जिंक देखो यहाँ बराबर बीच में, आयन भी बराबर बीच में। और कम रिएक्टिव में कौन सा लिखा है हमने, कॉपर। ओके, सो ऐसे इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ओके, let's move on to the last question for this day, last question for this learning session, last question for this chapter, and last question for science one, and maybe my last video also. Okay, so write scientific reasons lemon or tamarind is used for cleaning copper vessels turned greenish। तो यार हमने आज ही देखा है बराबर कि अगर कॉपर का वेसल होगा, कोई बर्तन होगा कॉपर का, तो ग्रीन कलर का हो जाता है, हमने आज ही देखा था। तो लेमन और टैमरिंड को यूज करके वो कैसे क्लीन कर सकते हैं, सोचो, तुम खुद से सोचो and try to write the answer. Okay, I think you have enough information to write the answer by yourself. आज ही हमने डिस्कस किया। So wait for 5 seconds for you to pause the video and try to write the answer by yourself. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope at least you tried to write the answer. It's okay if you are not able to write the complete answer. It was a very simple and short answer.
First point, the green color on copper vessels is due to formation of copper carbonate ion. This is my introduction line. कि ग्रीनिश कलर का हो जाता है, वो किसके वजह से हो जाता है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. किसकी वजह से हो जाता है? कार्बन नहीं, कॉपर कार्बोनेट की वजह से आ जाता है. दैट्स माय इंट्रोडक्शन पॉइंट. सेकंड इज माय रियल रीजन. ओके, copper carbonate reacts with acids present in lemon or tamarind. As a result, this copper carbonate layers get removed. तो यहाँ ये इसका हिंट कहाँ से मिलता है? देखो, तुम्हें पता है लेमन और टैमरिन को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं. तो लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. यू हैव लर्न दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस, राइट? Lemon has citric acid. Similarly, tamarind has also some acid, whose name I don't remember. Okay, so if you remember, you can put that in the comment section of this video. Tamarind में कौन सा acid होता है? Lemon में I know it's citric acid. इनमें जो एसिड होगा उसकी वजह से वो क्लीनिंग हो रहा है. ये तुम गेस कर सकते थे खुद से. तो कभी कभी आंसर अगर तुम्हें नहीं पता, should be able to make very good guesses so that you don't leave the question. तुक्का लग गया तो लग गया, तुम्हें आंसर मार्क्स मिलने से मतलब, बराबर. So copper carbonate reacts with acids present in lemon or tamarind. As a result, copper carbonate का layer हट जाता है, remove हो जाता है. Then you just write hence, put a comma and पूरा sentence, question का जो sentence है वापस लिख दो. So that's your conclusion line. तो ऐसे तुम इस give reason का आंसर भी लिख सकते हो. Okay, so that is it. Just check whether you accomplished this learning objective. Can you explain me galvanizing में कौन सा layer लगता है? Can you explain me tinning में कौन सा layer लगता है? Can you explain me what is alloy? Can you give me the definition of alloy? Can you tell me what is और क्या पढ़ा था? Electroplating क्या होता है? ये तुम बता सकते हो. If you're able to answer all these questions, if you're able to explain all these processes, ways to prevent corrosion, then you have achieved today's learning objective. If not, you need to do something about it. I leave that up to you. You figure out कि तुम कैसे इस learning objective को achieve कर सकते हो. Okay, so that is it for this learning session. That is it for this chapter. That is it for science 1, and that is it hopefully for my YouTube career. I will not be needing to make any more videos hopefully. So that is it, friends. I hope you use this entire channel as uh, a collection of videos where you can access all of these videos based on whatever you need revision for. Okay, I know that some topics, some chapters we have covered 6 months, 7 months back, और अभी तुम उसको वापस रिवाइज करना शुरू करोगे, तुम्हें याद नहीं आएगा. So if you need some revision, obviously the first thing you should do is just read the textbook, और उसमें से कौन से तुम्हें टॉपिक्स अच्छे से याद नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, you can use all the videos that I have recorded till now. They're always going to remain on YouTube. You can use them to revise again and again अगर नहीं समझ में आ रहा. Okay, so I hope this video, not just this video, but all the video or entire library of videos that I've made on this channel is helpful for you, and you use them whenever you need them to, as especially for revision or especially for revising things that we have learned a few months back अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो. Okay, so that is it, friends, and we'll see each other. No, now we won't see each other, right? हो गया, ये last video था. So that is it, friends. So this is a goodbye. So goodbye, friends. Peace.